The first monsoon rain has caused waterlogging and flooding in parts of the holy city of Ayodhya. After the head priest of the Ram temple at Ayodhya flagged a water leak situation in the temple, the management trust of the mandir has ruled out any flaws in the design or construction of the Sri Ram temple. The Uttar Pradesh government and the temple trust together are working on a war footing to prepare Ayodhya to brave the monsoon onslaught. The first rain of the monsoon season drenched Ayodhya with relief from severe heat wave spell. गर्मी से बहुत बढ़िया राहत मिली है और अच्छा है कि जो बरसात हो रही है अब किसानी और खेती का भी मौसम चालू हो जाएगा। लोग बेरन वगैरह लगवाएंगे किसान लोग। पानी से हम लोग बहुत खुश हैं। पानी में निकले और भीगते हुए आए यहाँ पे। अयोध्या में तो बहुत बढ़िया इस समय बारिश हो रही है। जिसकी मानसून का जिस आवश्यकता थी उसी तरह बारिश हो रही है। बहुत अच्छी बारिश हो रही है इस समय। Within the next few days, Ayodhya got waterlogged in the first monsoon since the inauguration of Ram Temple in January this year. The city has been witnessing its first heavy rainfall of the season since 22nd June. Few days of daily rain caused flooding in the Rajpath and the Janmabhoomi Path leading to the temple. The hospital adjacent to the temple also got flooded, and so did nearby residential complexes. ये हाईटेक सिटी नहीं बल्कि यूं कहा जाए जलटेक सिटी बनने वाली है। जल में तैरने वाली अयोध्या द्वारिका बनेगी। अंदर जाइए, डुबकी लगाइए और फिर ढूंढ के आइए कि कहाँ रामलला है, कहाँ हनुमानगढ़ी है। ये स्थिति बना दी गई है। सारी सड़कें टूट गई हैं अयोध्या की, वही तोड़ी जाती हैं, वही बनाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, बनाई जाती हैं, तो पानी बह नहीं रहा है। Civic administration is working on war footing to clean up the city and cover up the potholes. But the work gets hampered with another round of fresh rain. On the Saturday night, heavy rainfall was witnessed here in Ayodhya, which has resulted on several potholes on this Ram Path, which was constructed just before the consecration of Ram Temple as part of the development of the whole city. Now, what is also very important is that the work of sewage, which was done before, now questions are being raised on the quality of it and whether or not the work was done in such a full pace that the quality was not ensured, and that is why it has resulted in such potholes on the roads. Uttar Pradesh PWD department claims the potholes are a result of a sewage pipeline removal. जल निगम के द्वारा एक सीवर लाइन वहां डाली गई थी जिस समय निर्माण कार्य चल रहा था। वो सीवर लाइन 5 से 7 मीटर नीचे डाली गई थी। उस सीवर लाइन का जहाँ पे मेन होल बनाया गया था, उस मेन होल के पास कुछ जिसको कहना चाहिए कि सॉइल की कंप्रेसिंग कुछ कम रही होगी, गैप्स रहे होंगे, उस कारण वो थोड़ा सा उस कारण वहाँ पे गड्ढा बना है। वो जल निगम ने उसको फिलहाल उसको भर दिया है। हम उसको ब्लैक टॉप अभी इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी वहाँ पर थोड़ा मौसम ठीक नहीं है। The situation got worse with the report of temple roof leaking confirmed by the chief priest himself. ऊपर से टपकने के समय तो हम रहे नहीं, लेकिन लोगों ने बताया कि ऊपर जो छत है वहीं से टपका है। इसलिए छत के बीच में जो पत्थर लगाए गए हैं उसमें कहीं दरार है और उसी दरार के माध्यम से वो पानी टपका। Ram Temple Trust dismissed the chief priest's allegations. The trust authorities also clarified that the sanctum sanctorum of the temple did not get waterlogged, as was claimed by some reports. श्रद्धालु अभिषेक नहीं कर सकते, वहाँ पे गर्भगृह में जाते नहीं हैं श्रद्धालु, वहाँ पर किसी प्रकार का और जल नहीं होता, सिर्फ भगवान का जो स्नान होता है, श्रृंगार होता है, वही जल होता है। तो अनेक जो साधु संत थे उनकी यह राय थी कि इस पानी को आप एक कुंड में एकत्रित करें और कुंड में एकत्रित कर लें, जैसे लोगों को लेना है, जल लेना है तो वो स्नान का जल भी लेते हैं। तो वो कुंड निर्माण के पास बना हुआ है, उस कुंड में वहाँ से पानी जो है वो एब्जॉर्ब करके और उसको फिर निचोड़ के वहाँ पे रख दिया जाता है।
India Today reached out to experts to understand the reasons better. पहली बात तो यही है कि जब बिल्डिंग आधी बनी है तो हो सकता है कुछ कमरों की छत पड़ी हो, कुछ की न पड़ी हो, किसी कमरे के सामने वरांडा बनना हो, अभी न बना हो, तो जो पानी वरांडे तक आ सकता था वो फिर अंदर वाले कमरों तक आने लगता है। यहाँ राम मंदिर में भी जो गर्भगृह के सामने जो हॉल है उसके ऊपर अभी छत नहीं बनी है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पर बड़ी बड़ी मेहराबें बनी हैं, तो कई बार बौछार का भी पानी इतना ज़्यादा होता है कि अंदर आके इकट्ठा हो जाए और लगता है कि पानी पता नहीं कहाँ से आ गया है। इस केस में अभी छत पड़ गई है, संभवतः छत के ऊपर के ट्रीटमेंट अभी नहीं हुए हैं। तो इधर अभी आपने इस केस दिखाया कि क्या होता है जब इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, प्रॉपर स्लोप नहीं बना है, तो कहीं कोनों पर पानी इकट्ठा होना शुरू होता है और ये पानी फिर दीवार के अंदर से सीप करता हुआ अंदर आ जाता है और यहाँ पर फिर सीपेज के रूप में दिखाई पड़ता है। Rain or hail, dry or waterlogged, devotees continue to throng the temple for a glimpse of their beloved Ram Lalla. In first 6 months since the majestic inauguration, more than 1,75 lakh devotees have come to pay their obeisance to the Lord Ram in Ayodhya, braving all challenges, in devotion, seeking peace.